जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। कमिंग महीने में तो दुर्गा पूजा है, शरद नवरात्रि। तो इस नवरात्रि में, दुर्गा पूजा में, what will be the overall state situation of the society, impact on human lives for due to coming of माँ दुर्गा and due to this नवरात्रि सेलिब्रेशंस, उसका ही हम रीडिंग करने वाले हैं। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। जय माँ दुर्गे, जय माँ नवदुर्गे। I call upon the divine feminine forms and I ask their divine help to guide me in this reading। क्या होने वाला है, पूरा इम्पैक्ट क्या होने वाला है ओवर ह्यूमन लाइव्स दिस 2024 नवरात्रि में। पहला कार्ड लिए, फिर दूसरा कार्ड, फिर तीसरा कार्ड, फिर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कार्ड हम चूज़ किए ऑलरेडी। चार कार्ड, 5, 5 और दो बाकी है। तो मैंने 7 कार्ड्स चूज़ कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला जो कार्ड मैंने चूज़ किए उसमें क्या लिखा है देखते हैं। किंग ऑफ वैंड्स। अच्छा, इसका मतलब कि there will be some people in society who are already in a proper good state। लाइफ में वो लोग अच्छा खासा जगह पे ऑलरेडी है, लाइफ में वो लोग ऑलरेडी स्टेबल जगह पे है and they are having and leading a very good life, okay। Position of a king with wands in his hand। जो व्यक्ति ऐसा जो व्यक्ति अच्छा खासा जगह पोजीशन पे होते हैं, जो व्यक्ति किंग स्टेट पे होते हैं, नॉलेज है, वेल्थ है, सब कुछ ठीक ठाक है, he or she is having the power also to guide some other people। yes, और एफिशिएंटली और भी एफिशिएंटली दूसरे को गाइड करना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। कैन डू हेल्प एंड सपोर्ट मॉनिटरी, फिनेंशियली थ्रू हिज ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो। अच्छा है। सम पीपल don't mind telling in a different views, from different views कि कुछ लोग समाज में
if they need any kind of monetary help or any kind of advice, good knowledge, proper guidance of any aspect of life, they can get some help and infos from this kind of people who are already in a proper good state of life, who are already in a proper good state of life. Okay, so needy people, the people who really need help, all sorts of monetary, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर एडवाइसेस की ज़रूरत है, तो they will get help. Somehow divine feminine energy will make them somehow divine feminine energy will make them connect with some sort of this kind of people. अच्छा कार्ड है, ठीक है, ख़राब कार्ड नहीं है। और इट्स अ गुड कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स है। और यस, there will be good people in society who will by themselves, it can be by themselves, they can come forward in this Navratri time to help other people, to offer them foods, like many kinds of donations, many kind of offerings are done in this puja, like the people who have the capabilities, like they have enough money, often they donate in many big pujas, confirmations, they will do that, monetary support, financial support to needy people, to needy person, to needy areas, they will do that. So माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा, माता रानी, she is going to, I'm getting little vibes ki she is going to do something, like obviously it's a divine miracle, she is going to do something ताकि इस नवरात्रि में, स्पेशली इस 9 days शरद नवरात्रि में, अक्टूबर में, needy people, not only poor, any kind of needy people will get her blessings, will get her support, divine feminine blessings and support, and they will get help, ठीक है। So it can be a wealthy businessman, it can be a well settled person in the society, a rich person, famous person, wealthy person, financially much stronger, abundance of मतलब finance and money abundantly इसके पास, ऐसे लोगों के पास होगा। It can be male, female, any gender of, any sort of gender, any gender of, हो सकता है कि कोई ऐसे बोले कि चलो हम थोड़ा डोनेट करते हैं, थोड़ा पैंडल ऐसे सजाओ, थोड़ा और भी अच्छी तरीके से पूजा हो पाए, और भी हम डोनेट कर रहे हैं कि और जो पुअर पीपल है उन लोगों का एक दिन खिलाओ, उन सभी लोगों को। पूजा रिलेटेड एनी डोनेशंस और ऑफरिंग्स, दान, कोई भी दान, मतलब any kinds of donations done in puja time
in puja place to the puja committee. This kind of things I'm getting the vibes. Not only poor people or any, I'm saying any kind of people will get help. Okay, like ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति का, किसी फैमिली में इस नवरात्रि में बहुत ज़रूरत है किसी से मनी हेल्प का. easily they will get if they really ask from देवी दुर्गा, माँ वैष्णवी या माँ दुर्गा से आप प्रार्थना करेंगे. if any person, I'm getting the vibe, so I'm guiding you, any person in this world who are watching this video, any person from any religion, from any gender, if you get these vibes, if you feel that इस नवरात्रि के टाइम you urgently need some money help, उसके साथ साथ कोई भी नॉलेज, कोई भी एडवाइस आपको चाहिए लाइफ के लिए बहुत अर्जेंटली, you can call, pray to Ma Durga and Ma Vaishnavi, because she is always on this earth every time and second. But ये तिथि जो होता है ना, हर देव देवी का विशेष तिथि होता है, तो विशेष तिथि में उस देव या देवी का पावर प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली बढ़ जाते हैं. तो इजीली वी साधारण इंसान कैन इजीली कनेक्ट एंड मैनिफेस्ट थिंग्स फ्रॉम हर और हिम. सो इट्स अ डिवाइन गाइडेंस की money, especially I'm getting the vibes like of money help, money support, any person, not only for puja, decorations and all this, any help monetary if you need for any purpose, urgent purpose, you can pray and you can ask this in this time, or your manifestations will come very powerfully very soon. Within this Navratri you will get that. Okay, so King of Wands ऐसा थोड़ा वाइब्स मिल रहा है मुझे. अच्छा देखिए, किसी क्या बोले, किसी अच्छे व्यक्ति के अंडर या इन्फ्लुएंस में आके यू कैन बी बेनिफिशियल, यू कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम मेनी गुड एस्पेक्ट्स विच यू नीड राइट एट द मोमेंट इन योर लाइफ. ये जो नवरात्रि आ रहा है, शरद नवरात्रि अक्टूबर में, right time to pray to Devi Durga, right time to ask anything from her, positive things you can easily manifest. because easily क्योंकि ये तिथि है, देव देवी हमेशा बुलाने से ही आते हैं या आती है, दिल से बुलाने से. लेकिन ये जो तिथि है ना, डेट है, स्पेशल डेट्स है कुछ देव देवी का, जिस दिन पे हम लोग सेलिब्रेशन करके पूजा करते हैं, ये तिथि बोलते हैं. तिथि बहुत पावरफुल होते हैं फॉर मैनिफेस्टेशंस. These are very powerful days. Tithis are very powerful for the manifestations. ठीक है, तो for manifestations, for especially I'm getting the vibes of any monetary manifestations, money manifestations, you can get that. Somehow you will get that support. Somehow you will get that support. Somehow you are going to receive that blessings. Manifestations will get fulfilled. confirm ये confirmations confirm है. ये पॉजिटिव कुछ चीज़ आप लाइफ में ले आना चाहते हैं. you have a dream from a long time, you need that thing from a long time. You can easily manifest that if you ask in a proper way, the way spiritual person will guide you. manifestations का भी कुछ तरीका होता है, सिंपल है लेकिन कुछ तरीका होता है. to easily get connect with that Brahmand divine energies, angels and any
divine energies from of any religion. So powerful time, powerful tithi, Navratri, powerful for manifestations easily, powerful for manifestations easily. Okay, तो ये एक নিয়ে যাও, হয়ে গেছে এটা মা। तो ये एक पावरफुल चीज़ है, ठीक है, जो पावरफुल चीज़ है जो आपको टैरोट बताना चाहते हैं इस नवरात्रि के लिए। थोड़ा थम्स अप पी लेते हैं, आई एम सॉरी, जस्ट लाइक डोंट माइंड प्लीज़। थोड़ा फ्राइड कुछ खाए थे, लाइक यू नो, थोड़ा फ्राइड कुछ खाने के बाद हम थोड़ा हजम के लिए कुछ स्प्राइट या थोड़ा थम्स अप कभी ऑफन थोड़ा पीते हैं। तो सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, सो ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो क्या है देखते हैं। ओ हम सभी लोगों को पता है देवी दुर्गा किल्स द डेमन्स। देवी दुर्गा हैज़ 10 हैंड्स। माँ वैष्णवी ही माँ दुर्गा है, हैज़ 8 हैंड्स। देवी दुर्गा, कोई भी देवी, दे किल डेमॉन्स, दे डिस्ट्रॉय डेमॉन्स। हाई टाइम टू प्रॉमिस योर सेल्फ टू गेट एडिक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ to get addicted from any kinds of addictions, bad addictions. अगर हाँ खुल के हम बात करते हैं इस कार्ड के हिसाब से, डोंट गेट अफ्रेड, ये कोई गाइडेंस है। एक्चुअली ये डेविल्स कार्ड है लेकिन कोई गाइडेंस है इसका प्रॉपर। नवरात्रि आ रहा है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि देव देवी हमेशा रहते हैं, रहती है हमारे आसपास है। वी जस्ट हैव टू कनेक्ट विद देम प्रॉपरली, एंड देन मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एवरीथिंग जो होता है जो शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद। इस कार्ड का मतलब डिवाइन एनर्जीज का मतलब क्या है? telling you to get out from any kinds of bad addictions. अगर आप बहुत सालों से आपको कोई प्यार में धोखा दिए थे, ये टॉपिक हम क्यों ले आते? बिकॉज nowadays these are very common for any people, for straight people, for LGBT community people. See, confirmations. So अगर प्यार में धोखा हुआ था, उस धोखे से आप बर्बाद हो चुके हैं, एंड यू आर सफरिंग फॉर ईयर्स ड्यू टू दैट बिट्रेयल। जो व्यक्ति आपको दुख दिया, कष्ट दिया, दर्द दिया, फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेशन में आपको डाल दिया, प्लीज़ डू नॉट कीप 1%, 0.0% ऑल्सो अबाउट दैट पर्सन एनी फीलिंग्स इन योर माइंड, बिलीव मी। जब कोई दुख भरा लाइफ का चैप्टर, लाइफ का मोमेंट्स, लाइफ का किस्सा हम याद नहीं करते, मन में आ जाते हैं, तब पूरा मन जो होता है ना, पूरा जो भावना, पूरा जो मन होता है, वो पॉइजनस हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, और हमारे दिमाग, हमारे सोच को टॉक्सिक बना देते हैं। सो पास्ट में कोई भी मेमोरीज जो आपको हर्ट किए थे बुरा तरीके से, जो कुछ पास्ट का कुछ बहुत घटिया मेमोरीज, स्पेशली बिट्रेयल इन लव, betrayal of anything, any friend, any neighbor, any relative, any close person, any lover,
एनी पर्सन, बिट्रेयल, स्ट्रॉन्ग घटिया बिट्रेयल आप याद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 4 साल 6 साल 8 साल बाद कभी ना कभी आपका मन में ख्याल में आ जाते हैं, उस शैतान व्यक्ति का याद आ जाते हैं कभी कभी। आपने तो बहुत ऑनेस्टली प्यार किए थे, आपने तो बहुत ऑनेस्टली उसको ट्रस्ट किए थे किसी ना किसी एस्पेक्ट से, इन एनी फॉर्म ऑफ रिलेशन, लेकिन आपको धोखा दिया है। कन्फर्मेशंस आवाज़ हुआ तो हटा दीजिए मन से। देवी दुर्गा को, माँ वैष्णवी को प्रे कीजिए इस नवरात्रि में कि खराब व्यक्ति को हम दिल से पूरा हम लोगों को भुला देना चाहिए। जो व्यक्ति आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, आपका जब ज़रूरत होता है, आपका लाइफ में जब इंसान का ज़रूरत होता है, द टाइम व्हेन यू रियली नीड योर लव्ड पर्सन, अगर वो उस टाइम आपके पास नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, लीव हिम और हर परमानेंटली। इंसान के पास अवेलेबल होना चाहिए, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ खराब समय या लोनली टाइम में। जब इंसान का खराब टाइम आते हैं, जब इंसान का बहुत बुरा वक्त चलता है, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल टाइम टू अंडरस्टैंड कि कौन लोग आपके पास रहा उस टाइम, कौन सा घर का परिवार का सदस्य, कौन सा रिलेटिव, कौन सा नेबर, कौन सा फ्रेंड, कौन सा लवर, कौन सा व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति या नोन पर्सन आपके साइड में खड़ा होके रहा उस खराब टाइम पे। तो दिस इज एक्चुअली द मेन थिंग। इस कार्ड का मतलब है कि एक मेल और एक फीमेल नेकेड है और दे आर टाइड विथ अ चेन, एंड वो चेन डेविल ने पकड़ के रखा है। दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ द डेविल, दे आर लव, दे आर लास्ट, दे आर फिजिकल मेंटल अट्रैक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द डेविल। हॉर्न्स भी है दोनों, एक लड़के और लड़की के सर पे हॉर्न्स भी है। सो प्लीज try to understand that any kind of addictions, especially in matter of love, ऐसा कोई लव, ऐसा कोई रिलेशनशिप जो आपको दुख दिया है, जो आपको हर पल दुख देता है, जो रिलेशनशिप में आप फंसे हैं, अगर वो छूट भी गया, आपके मन से ख्याल से वो नहीं जाते, वो व्यक्ति अगर टॉक्सिक है, अगर खराब है, अगर आपका डाउट है कि वो और भी लोगों से रिलेशनशिप पे है, रिलीज़ कीजिए, उसको छोड़ दीजिए मन से। देवी को प्रे कीजिए, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी को प्रे कीजिए इस नवरात्रि में कि मुझे अच्छा लवर, अच्छा रिलेशनशिप, ऑनेस्ट लवर, ऑनेस्ट रिलेशनशिप प्लीज़ दीजिए। मुझे अच्छा लवर, अच्छा व्यक्ति, अच्छा पर्सन, अच्छा रिलेशनशिप दीजिए, टॉक्सिक प्लीज़ मत दीजिए। एंड देवी तो नहीं देते, वो भाग्य के चक्र से आ जाते हैं। कर्मा का बहुत विषय है, ठीक है, बहुत विषय है इसके ऊपर। तो स्पेशली वी हैव टू प्रे टू देवी दुर्गा इस नवरात्रि में, वी हैव टू प्रे टू माँ वैष्णवी। फेमिनाइन एनर्जी को प्रे करना है हम लोगों को इस नवरात्रि में, ताकि कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप, लवर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक है, जो हमारे लिए नेगेटिव है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, जो हमारे लिए ख़राब है, हम लोगों को बहुत दर्द दिए, दुख कष्ट दिए हैं, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में धकेल दिए हैं, जो रिलेशनशिप, जो व्यक्ति, सब चीज़ों से हम लोगों को बाहर आना है। स्ट्रिक्टली देवी को प्रे करना है कि हे देवी, हे माँ वैष्णवी, हे माँ नवदुर्गा, हे माँ दुर्गे, कन्फर्मेशंस, हे माँ महालक्ष्मी, हे माँ महासरस्वती, हर हर महादेव जी,
हे कार्तिक जी, हे गणेश जी, ब्लेसिंग्स कीजिए, आप लोगों का ऊर्जा हमारे अंदर दीजिए ताकि मन आत्माओं को शांत कर पाए, दिमाग, ख्याल, सोच, मन, भावनाओं को प्योर होली कर पाए और हमारे मन में, हमारे भावनाओं में कोई भी टॉक्सिक व्यक्ति का मेमोरीज ना रहे, ना रहे। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एडिक्शंस, हो सकता है कोई अदर फॉर्म्स ऑफ एडिक्शंस मतलब क्या बोले, कोई बहुत सारा फैमिली में कुछ कुछ ऐसे हम लोग मतलब हम लोगों को पता है कि बहुत सारा फैमिली में कि कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग अल्कोहल्स पीते हैं, कुछ लोग खराब जो एडिक्शंस होता है उन चीज़ों में रहते हैं, कुछ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हो जाते हैं एडिक्टेड। तो इट इज़ द हाई टाइम इफ़ दे I'm telling for those kind of people and I'm telling for the family members of those kind of people कि नवरात्रि is the perfect time to ask the blessing and grace of माँ दुर्गा and माँ वैष्णवी कि ऐसे ख़राब एडिक्शन से हम लोग बाहर आए, ऐसे ख़राब एडिक्शन से हम लोग बाहर आए और हर फैमिली सुरक्षित रहे और हर फैमिली के हर सदस्य सुरक्षित रहे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैड एडिक्शंस। स्पेशली अबाउट लव, आई एम गेटिंग द वाइब्स ऑफ लव मच, ओके, कि ऐसा वाइब ज़्यादा मिल रहा है कि बहुत सालों से आप सफ़र कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं या ऑलरेडी दोनों अपार्ट हो गए हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, मतलब जो ऑनेस्ट व्यक्ति था वो भूल नहीं पा रहे हैं उस व्यक्ति को, टॉक्सिक व्यक्ति को। रिलेशनशिप कैन बी एनी, इट कैन बी स्ट्रेट पीपल रिलेशनशिप, इट कैन बी रिलेशनशिप ऑफ LGBT कम्युनिटी पीपल ऑल्सो। अगर आप भूल नहीं पा रहे हैं, देखिए आप जिसके बारे में सोच के जो मन में कष्ट होता है, दुख होता है, जो दर्द होता है ना, अगर खराब व्यक्ति है, टॉक्सिक व्यक्ति है, तो क्यों आप दुख दर्द कष्ट भोगेंगे। यही माँ दुर्गा का जो इंफॉर्मेशन है कि डेविल व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति अंडर डेविल गाइडेंस रहते हैं, होते हैं ना, जो लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, जो लोग डिसलॉयल होते हैं, जो लोग बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, जो लोग इंसान को बिट्रे करते हैं, जो लोग इंसान का सॉफ्ट माइंड का, अच्छे इंसान का फ़ायदा उठाते हैं, एडवांटेज लेते हैं, तो वैसे ख़राब टॉक्सिक व्यक्ति के लिए आप क्यों दुख पाएंगे, सालों साल क्यों सफ़र करेंगे। कुछ वाइब्स ऐसा मिल रहा है कि कुछ ऐसा व्यक्ति है, जो लोग ये रीडिंग देख रहा है, जो लोग टॉक्सिक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप पे थे, अभी अपार्ट हो चुके हैं, लेकिन 4 साल 6 साल हो गया है, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हैं, आप भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो टॉक्सिक ख़राब व्यक्ति उसका काम जो है वो कर रहा है, और भी लोगों के साथ फिज़िकल, मेंटल, इमोशन सब कुछ है, लेकिन आप ऑनेस्ट व्यक्ति है, आप 6 साल हो गया है फिर भी भूल नहीं पा रहे हैं। और आप भूल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपको नया कोई व्यक्ति भेज नहीं दे पा रहा है। टू गेट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, एनीथिंग, वी हैव टू क्लोज आवर पास्ट साइकिल, देन ओनली यूनिवर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू पुश गुड थिंग्स, न्यू थिंग्स टू आवर लाइफ। अदरवाइज इट्स नॉट, यूनिवर्स का कष्ट डिफ़िकल्ट होता है कुछ नया देने के लिए इंसान को। एक साइकिल एंड होता है, एक साइकिल शुरू होता है, ऐसे चलता है इंसान का लाइफ। बिलीव दैट, बिलीव इन दिस थ्योरी, बिलीव इन दिस थ्योरी, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो टॉक्सिक व्यक्ति, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, स्पेशली LGBT कम्युनिटी पीपल, स्पेशली आई एम टेलिंग दैट, अगर थे आप लोग कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक पर्सन के साथ 6 साल 8 साल हो गया है, वो तो भूल गया, टॉक्सिक व्यक्ति जो था वो भूल गया, वो उसका जो काम है वो कर रहा है सबके साथ, लेकिन आप तो ऑनेस्ट थे, आप तो भूल नहीं पा रहे हैं। वही इमोशनल अटैचमेंट, वही मेंटल अटैचमेंट, टॉक्सिक व्यक्ति के साथ, टॉक्सिक पर्सन के साथ किसी भी तरीके का साइकिक कनेक्शंस ना रखे, सोल कनेक्शंस ना रखे,
उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों का। डिसऑनेस्ट व्यक्ति, डिसलॉयल व्यक्ति, टॉक्सिक व्यक्ति का कोई अंदर का कोई फीलिंग्स नहीं होता। दे आर टॉक्सिक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को, आज इसके साथ तो कल उसके साथ, आज कल उसके साथ तो कल उसके साथ। तो थोड़ा आवाज़ ऊंचा हो गया, आई एम सॉरी, जस्ट फॉर डिवाइन गाइडेंस आई एम सेइंग। सफ़र मत कीजिए। 6 साल, 5 साल, 8 साल आप भूल नहीं पा रहे हैं और आप सफ़र कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। पास्ट को भूल जाइए, पास्ट में जो हुआ भूल जाइए, भूल जाइए। जितना भी रिलेशनशिप स्ट्रांग था, देखिए रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है, लव अफेयर्स, लव रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन टॉक्सिक अगर निकला व्यक्ति एंड इक्वल टू 0 होता है। तो टॉक्सिक पास्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पास्ट लवर, टॉक्सिक पास्ट रिलेशनशिप, टॉक्सिक पर्सन के साथ कोई भी अटैचमेंट मत रखिए प्लीज़। इट्स माई handfold request to all my friends, especially to LGBT community people, especially to all people. We are humans, we are pure humans, we have pure soul, we are honest people, we will get honest people, we are going to get honest people, we are going to get honest people one day, obviously, whether straight people or whether people from LGBT community, whether if we are honest, obviously we will one day get a honest person, honest partner in our life. टॉक्सिक पर्सन का यादें जो भी है, टॉक्सिक लोगों का जो भी यादें है, भूल जाइए प्लीज़, फॉर गॉड सेक। दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस ऑफ दिस सेकेंड tarot cards. See, it's matching, it's matching, it's matching, it's matching. ऑलरेडी आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधे पे है, बहुत सारा हार्ट आप हुए हैं पास्ट में। इफ़ इन मैटर ऑफ लव, इफ़ इन मैटर ऑफ रिलेशनशिप, आप पास्ट में बहुत हार्ट हुए हैं। यू ऑलरेडी हैव दैट बर्डन एंड स्कर्ट्स ऑन योर बॉडी। स्कर्ट्स मतलब घाव होता है ना। एक इंसान हो सकता है या बहुत सारा इंसान आपको ऑलरेडी पास्ट में हार्ट कर चुके हैं। आप बहुत मेंटली इमोशनली थक चुके हैं। आपका हार्ट चक्र शायद क्लोज भी हो सकता है। मे बी यू हैव टेकन अ डिसीजंस कि लव में और नहीं जाएंगे। योर लाइफ इज़ ऑलरेडी विथ मच ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके साथ साथ तो पास्ट का ट्रॉमा एंड एवरीथिंग। सो पूरा मिक्सड अप सिचुएशन फील हो रहा है। प्लीज़ पास्ट से बाहर आइए, पास्ट का मेमोरीज से बाहर आइए, तभी आपको यूनिवर्स कुछ नया दे पाएगा। विदाउट coming from the old phase of cycle, you are not going to get something new. It is the nature of universe to give. आपके ऊपर फैमिली का ऑलरेडी कुछ ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पास्ट में बहुत आप हर्ट हो चुके हैं। पास्ट में आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, बहुत हर्ट हर तरीके से। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लव और अफेयर और रिलेशनशिप, इट कैन बी फ्रॉम एनी एस्पेक्ट। लोगों ने आपको मिसअंडरस्टूड किया, लोगों ने आपके साथ झगड़ा किया, आपके बारे में निंदा किया, आपके बारे में बहुत सारा गलत चीज़ लोगों को बोले, आपका इमेज ख़राब किया लोगों ने, आपके बारे में बहुत कुछ घटिया चीज़ की है। देखिए, एक थप्पड़ मारना या किसी को धक्का देना या किसी को धक्का देके चोट पहुंचाना, ये एक अलग बात होता है। और आपके पीठ पीछे आपके जो क्लोज पीपल है उन लोगों के पास जाके आपके बारे में गलत कुछ चीज़ बोलना, ये बहुत घटिया ख़राब चीज़ होता है। आपने दोनों ही फेस किए, लेकिन सेकंड वाला आपने ज़्यादा फेस किए। ऑलरेडी यू आर अंडर मच ड्यूटीज़। देखिए कन्फर्मेशन हो रहा है, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, थोड़ा चार्ज लो हो गया है तो इसीलिए
एक सेकेंड रुकिए। हाँ, मेरा चार्ज थोड़ा लो हो गया था, इसीलिए चार्ज दिए। टॉकिंग अबाउट दैट। सो एक सेकेंड। अच्छा, जो भी है, I was talking about this card. You were already under much duties and responsibilities. Past में already बहुत कुछ trauma में आप थे. Now this Navratri is the time to pray to माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा, to pray and ask and seek her blessings कि आप लाइफ में सब कुछ बैलेंस कर पाए. Mainly you have to ask for a new startup. Mainly you have to ask for a new cycle, new phase of cycle from life. पास्ट का जो भी साइकिल था उसको क्लोज़ कीजिए. क्लोज़ करने का तरीका यही है कि पास्ट का मेमोरी से आप बाहर आइए. पास्ट में बहुत सारा ट्रॉमा आप फेस किए हैं ऑलरेडी. स्पेशली आई एम गेटिंग द वाइब्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप. और भी ट्रॉमा हो सकता है, लाइक बिट्रेयल ऑफ मनी और एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ. सो नवरात्रि से एक नया जीवन शुरू कीजिए, एक नया फेज लाइफ साइकिल शुरू कीजिए. कुछ नया कुछ सोच के, नया कुछ एम्बिशंस लेके, नया कुछ सोच के. दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट अप अ न्यू, डू सम प्रोजेक्ट्स, थिंक अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. हाउ टू कन्वर्ट एंड डाइवर्ट योर लाइफ, ताकि आप सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ जो भी है हर इंसान का रहता है. इसका मतलब क्या है कि वो पूरा जीवन इसमें ही डूब जाते हैं? नो, every person has the right and they have to enjoy their life. They have to go for traveling. They have to do something for themselves. Whether married or not married, whether in relationship or not, whether of any age. Person can be of any gender, person can be of any age, person can be of any place, from any religion. इंसान को जिंदा रहने के लिए जो हम जानते हैं ना, वही काफ़ी नहीं है. We have to love ourselves. We have to cherish ourselves. We have to think about ourselves. We have to be with the nature. We have to feel the nature. We have to listen music. We have to love flowers. We have to keep pets if it is possible. We have to be grounded. We have to be within the mother earth. We have to be spiritual. We have to be divine. हम इंसान है यार. We are not machines and robots. पूरा जीवन किया रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशंस, धोखे. दिस इज लाइफ. डू यू थिंक दिस इज लाइफ? इट कैन नॉट बी. व्यक्ति आईटी सेक्टर में काम करता है, व्यक्ति साइंस लेकर पढ़ा है, कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में काम करता है. हाँ, उन लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा अलग होता है, लेकिन दे ऑल्सो डू एन्जॉय देयर लाइफ. हर इंसान को अपने तरीके से लाइफ को लीड करना, जीना बहुत ज़रूरी है. एंड वी हैव टू बी ह्यूमन्स. वी डोंट हैव टू बी रोबोट्स एंड वी शुड नॉट बी लाइक रोबोट्स. वी हैव टू बी ह्यूमन्स. वी नीड रेस्ट. वी नीड आवर माइंड रेस्ट. We have to take care of our mind. We have to take care of our body. We have to take care of our mind and soul. It's very important. We have to take care of our mind and soul. तभी हमारा थॉट्स ठीक रहेगा, तभी हम लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, तभी हम लाइफ का सब कुछ बैलेंस कर पाएंगे. There are many people on this earth who have huge duties, huge responsibilities. Still they balance their life and they enjoy their life. Don't get stuck with these duties and responsibilities of life. अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालिए. खुद के लिए टाइम निकालिए.
आप तो बहुत सारा लोगों के बारे में सोचते हैं, उन लोगों का ख्याल रखते हैं, उन लोगों को केयर करते हैं, फैमिली में, बाहर, रिलेटिव, नेबर्स, फ्रेंड्स, बाहर के लोग, सभी लोगों के लिए आप सोचते हैं। वो क्या सोचेगा, ठीक है ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको ये देंगे, उसको वो देंगे, सबके लिए आप सोचते हैं, सबके बारे में आप सोचते हैं। यू टेक केयर ऑफ अदर पीपल्स इमोशंस, थॉट्स एंड एवरीथिंग। इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग। आपके लिए कौन सोचता है? आपने लाइफ में क्या पाया, क्या नहीं पाया, क्या खोया, आपके साथ जीवन में कौन कौन व्यक्ति ने खराब कुछ किए, आपको दुख कौन कौन व्यक्ति ने पहुंचाया, आपको दर्द कौन कौन व्यक्ति ने क्यों दिया। एक व्यक्ति आपको लाइफ में आके पूछा कि आप कैसे हैं, आपका मन कैसा है, आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। चलो हम दोस्त थे, हम आपको लेकर एक बार 2 दिन यहाँ जाके घुमा के ले आते, हम दोनों जाके, फ्रेंड है, घूम के आते, तब हमारा माइंड ठीक हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। एक व्यक्ति आके आज के ज़माने में किसी अच्छे व्यक्ति को बोलते हैं, आप सोचिए तो। मैंने तो, माई एज इज़ 32, मैंने अभी भी एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला। बिलीव मी, मैंने फेस किए हैं, इसीलिए आई हैव दैट एक्सपीरियंस एंड आई एम शेयरिंग विथ यू। Do not overthink and do not get stuck with your duties and responsibilities. माता का ब्लेसिंग्स लीजिए, माता के पास जाके अष्टमी में पूजा दीजिए, नवरात्रि में माता से यही पूछिए कि माँ, बहुत कुछ सोचे, बहुत लोगों के बारे में, बहुत लोगों के इमोशंस को केयर किए, थॉट्स को केयर किए। अब माँ, मुझे अब टाइम आया है कि आप मुझे अपना ऊर्जा दीजिए कि हम खुद के लिए कुछ कर पाए, खुद को चेरिश कर पाए, खुद को लव कर पाए, खुद के लिए कुछ कर पाए, खुद के मन के लिए, खुद के सोल के लिए, जो आपने ही हमारे मन, सोल को कंट्रोल करते हैं। आपका ये ब्लेसिंग से मेरा माइंड, मेरा सोल, देखिए कन्फर्मेशन हो रहा है, आ रहा है। तो माँ से यही पूछिए, इस नवरात्रि में रिक्वेस्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए कि खुद के लिए, खुद के माइंड के लिए, खुद के इमोशंस, थॉट्स के लिए, खुद के लिए कुछ मांगे। सिर्फ वेल्थ और मटेरियल ही नहीं, ग्रेस, एक्चुअली ग्रेस एंड पावरफुल ऊर्जा एंड ब्लेसिंग्स, ताकि मन को, आत्मा को डिवाइन कर पाए, रिलैक्स कर पाए। खुद के माइंड को, खुद के सोल को रिलैक्स कीजिए। माँ को बोलिए कि मेरा माइंड को, मेरा सोल को आप डिवाइनली प्रोटेक्ट कीजिए। आप मेरे माइंड में, सोल में आइए माँ, और एक इंसान का माइंड और सोल डिवाइनली कर दीजिए, डिवाइन कर दीजिए, आपकी तरह कर दीजिए। Don't get stuck, please, with your life duties and responsibilities, and don't get stuck with the past traumas and past thoughts. बाहर आइए। ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी है, दुनिया में कितने लोग हैं आप सोचिए, सभी का है। ये हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा लाइफ में, लेकिन खुद के लिए आप कुछ कीजिए। टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड सोल, यही टैरोट आप बोलना चाहते हैं, ये टैरोट कार्ड जो है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है, अच्छा 4 कार्ड है, ये वाला है। पास्ट में ऑलरेडी बिट्रेयल हुआ है, ठीक है। टैरोट का गाइडेंस है कि इस नवरात्रि में माँ से पूछिए, ब्लेसिंग्स लीजिए कि माँ, पास्ट में तो ऑलरेडी बहुत 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 बिट्रेयल हुआ है, पास्ट का बिट्रेयल, पास्ट का ट्रॉमा बहुत बहुत है, बहुत है, बहुत। तो मेरा जो फीलिंग्स, वाइब्स अभी मिल रहा है कि टैरोट इज़ टेलिंग यू, माँ दुर्गा इज़ ऑल्सो टेलिंग यू कि ज़माना तो ख़राब है, कलयुग चल रहा है, अच्छे इंसान का युग नहीं है ये। तो अच्छे इंसान, ऑनेस्ट इंसान जो भी है इस दुनिया में, इस कलयुग में, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर माइंड एंड सोल, वी हैव टू डू दैट, ताकि कोई भी व्यक्ति बिट्रे ना कर पाए। पास्ट में अगर कोई ट्रॉमा है, पास्ट में अगर कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी ख़राब ट्रॉमा है, बिट्रेयल, लव में कोई भी ट्रॉमा, प्लीज़ भूल जाइए। ऐसे सोचिए कि कलयुग है, भूल जाइए, और दोबारा ऐसा ना हो, ऐसा तैयार कीजिए खुद को।
भूल जाइए। पास्ट का खराब कोई भी चीज़, पास्ट का खराब कोई भी चीज़, पास्ट का खराब कोई भी ट्रॉमा, सब कुछ भूल जाइए। नवरात्रि से कुछ नया शुरू कीजिए और पास्ट में भूल जाइए, लेकिन एक्सपीरियंस तो थोड़ा हुआ, एक्सपीरियंस का हेल्प लेके आगे बढ़िए लाइफ में। डू नॉट गिव एनी सिंपल और सिंगल अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल टू डिस्ट्रॉय एंड योर माइंड एंड सोल। नवरात्रि से नया कुछ शुरू कीजिए, नया कुछ शुरू कीजिए। अच्छा, देखिए इसका ये कार्ड जो है ना, आप देख रहे हैं कि कुछ लोग गैदर हुए हैं, कुछ लोग गैदर हुए हैं, ठीक है। देखिए पूजा में तो ये होता है कि पंडाल्स होता है, हम लोग जो देव देवी का मूर्ति है, हम लोग देव देवी का मूर्ति देखने के लिए जाते हैं, हम लोग गैदरिंग होता है पंडाल्स में, मीटअप होता है फ्रेंड्स लोगों के साथ, रिलेटिव्स लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मीटअप होता है पंडाल्स में, लाइक फेस्टिवल्स, फेस्टिव मूड्स, ठीक है। ये तो इसका कार्ड का मतलब ऐसा तो होगा ही, क्योंकि पूजा में तो होता है। या फिर कोई नया बिजनेस, कोई नया जॉब, बिजनेस मिल रहा है ज़्यादा वाइब्स की, कोई यू कैन डू अ न्यू स्टार्टअप। नवरात्रि में यू कैन आस्क द डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड यू कैन ऑल्सो प्रे फॉर अ न्यू स्टार्टअप इन योर लाइफ, a business। first priority as per this card will be business, उसके बाद job or anything, like you can ask and pray and your manifestations will get confirmed। टीम में, एक साथ टीम में काम करना, ऐसा कोई स्टार्टअप हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। तो कोई नया कुछ शुरू करना, कोई नया कुछ शुरू करना जो आपका करियर के लिए, लाइक बहुत महीनों से, बहुत सालों से आप जॉबलेस थे, ऐसा वाइब्स थोड़ा मिल रहा है। योर मैनिफेस्टेशंस कैन विल कम ट्रू इफ़ यू आस्क फॉर ए न्यू स्टार्टअप, टीम वर्क बिजनेस में, या कोई नया जॉब, गैदरिंग, गेट टुगेदर, तो ऑब्वियसली वाइब्स है ही, क्योंकि पूजा में तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, और 2 कार्ड बचा है। एक है किंग ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है जितना भी कार्ड्स मैंने रीड आउट किए नवरात्रि में, इस नवरात्रि में, शरद नवरात्रि में, कोई भी पॉजिटिव चीज़ अगर आप देवी से मांगेंगे, यू कैन बी एनी पर्सन फ्रॉम एनी रिलीजन, ऑफ एनी एज, ऑफ एनी जेंडर, आपका मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि नवरात्रि तो पावरफुल तिथि होता है, ऑब्वियसली मैनिफेस्ट होगा। और देवी से जो प्रॉमिस आप करेंगे, देवी से आप जो प्रॉमिस करेंगे, आपको वो निभाना होगा, तभी जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो अल्टीमेट फुलफिलमेंट की जगह क्लाइमेक्स में जाएगा। आप देवी से कुछ मांगे, देवी आपको देंगे, ऑब्वियसली देती है वो। फिर उसको कैसे यूटिलाइज करना, लाइफ में कैसे ले आना, वो पॉजिटिव चीज़ को लाइफ में पूरा लाइफ तक कैसे रखना, ये हम लोगों के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर अच्छी तरीके से रखेंगे तो एंड तक टिकेगा, अगर हम लोग कुछ गलत करें तो ऑब्वियसली वी हैव टू फेस द कंसिक्वेंस। हम लोग देवी से मांगे, देवी ठीक टाइम में दे देगी वो, लेकिन how to keep that in our life, that vardhan, that grace and blessings, that vardhan of Devi, that depends on humans। अच्छा, तो किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब है नवरात्रि को अच्छी तरीके से मनाने से, नवरात्रि को अच्छी तरीके से एक अच्छा इंसान, ऑनेस्ट इंसान होके अगर आप देवी से कुछ मांगेंगे, मैनिफेस्टेशन तो होगा ही, आपके लाइफ में वो वरदान, वो गिफ्ट आएगा। ठीक तरीके से संभाल पाओगे अगर उस गिफ्ट को पूरा लाइफ तक, एक टाइम लाइफ में आप ऐसा आएगा, आप ऐसा पोजीशन पे होंगे कि
आपके पास बहुत नॉलेज होगा, पावर ऑफ नॉलेज, जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है आपका 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 खुद के लाइफ में जो एक्सपीरियंस है, आपका खुद के लाइफ में जो एक्सपीरियंस है, अप्स एंड डाउन्स एवरीथिंग, उसके हिसाब से आप बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनने वाले हो ऑब्वियसली। और आपके हाथ में सोड है, मतलब नो नेगेटिव पीपल, नो नेगेटिव एनर्जीज कैन इफेक्ट योर माइंड, सोल, योर इमोशंस एंड योर एंड यू। तो मेरे आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यू विल बी इन दिस काइंड ऑफ पोजिशन वन डे, ठीक है। तो ऐसा वाइस मिल रहा है। यू आर गोइंग टू एडवाइज पीपल विथ योर लाइफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। You can also help people in many other aspects, other ways also. You can also help other people from other aspects and other ways also. So people will listen to you, people will take your guidance and support to lead a good life, ठीक है। देवी will give you this kind of gift, is going to give you। अच्छा, लास्ट कार्ड जो है, जो मैंने देखा कि wheel of fortune, सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, व्हील मतलब एक व्हील। योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज ऑब्वियसली 1000%। अगर इस नवरात्रि में आप अच्छे तरीके से ऑनेस्ट होके, देखिए, बहुत खर्च करके, बहुत प्रसाद देके, बहुत खर्च करके आप देवी को देंगे, आप बहुत कॉस्टली एक साड़ी देंगे, आप बहुत खर्चा करके देवी का श्रृंगार अरेंज करके देंगे, बहुत खर्च करेंगे पूजा में या पंडल में जाके आप डोनेशन करेंगे। हाँ, अगर आपका पॉसिबिलिटी है आप दे सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद है, आपका ऐसा क्षमता मिला है तो आप दे सकते हैं। ऑब्वियसली देवी विल टेक दैट, शी इज़ मेकिंग यू दैट केपेबल टू गिव those things to देवी, इट्स ओके। लेकिन याद रखना हमेशा कि सिंपल मन, सरल मन, जहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिस मन में आप एक फूल दीजिए, आपका जितना समर्थ, आपका जितना पॉसिबल है उनसे ही आप देवी को कुछ दीजिए, वो ही देवी के लिए काफ़ी है। भगवान को क्या चाहिए? अच्छा, सरल, साफ भक्त चाहिए, जिसका मन सरल होगा, जिसका मन साफ होगा, जो सरल मन से, साफ मन से देवी को, देवी को माँ, बाबा बोल के पुकारेंगे, यही चाहिए। बच्चे को, मतलब बच्चे लोगों का ही सिर्फ मन सरल और सिंपल, ऐसा सिर्फ नहीं है। कोई भी व्यक्ति का एज कोई भी हो सकता है, बूढ़े हो सकते हैं, जवान हो सकता है, मन अगर साफ है, मन अगर सरल है, साफ एंड सरल है, इजीली कनेक्ट हो पाएगा वो व्यक्ति कोई भी देव देवी से, कोई भी रिलीजियन का। इस नवरात्रि में साफ सरल मन से, रियल ट्रू ऑनेस्ट मन से अगर देवी का आराधना आप करेंगे, देवी के पास जाके एक बार पूजा देंगे, देवी के पास जाके आपका प्रेजेंट लाइफ में जो चाहिए आपके, ऑनेस्टली आप देवी को बताएंगे, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट दैट। एंड जो भी मैनिफेस्टेशंस आपका है, मतलब बहुत साल पहले था, ड्रीम्स था, एम्बिशंस था, ठीक तरीके से ऑनेस्टली आप देवी से मांगिए। बिलीव दैट, बिलीव दिस कार्ड, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज आफ्टर दिस नवरात्रि बाय ओनली हर ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। अच्छा, तो अभी क्या करते हैं, टोटल जितना कार्ड्स हुआ, टोटल 7 कार्ड्स जो था, टोटल 7 कार्ड्स का जो एक ओवरऑल समरी होता है वो हम बता रहे हैं। अच्छा, शॉर्टली, प्रॉपर तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, कैसे अष्टमी के दिन आप अंजलि दीजिए, पुष्पांजलि दीजिए। अष्टमी दिन ही तो इम्पॉर्टेंट, सब लोग नवरात्रि में अष्टमी के दिन ही सब लोग पंडाल में जाके या घर में जो लोग का पूजा होता है,
अष्टमी के दिन दिन अंजलि पुष्पांजलि देना तो बहुत ये तो कॉमन बात है। तो दैट डे विल बी द परफेक्ट। कोई भी डे, ऑल डेज आर सेम पावरफुल एंड परफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे टू 9th डे। अष्टमी के दिन और सेम पावरफुल होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग पहला दिन, अष्टमी के दिन, ये दोनों दिन चूज़ करते हैं देने के लिए पुष्पांजलि। तो नहा धो के, अच्छे कपड़ा पहन के, मतलब आपके पास जो भी कपड़ा है, नहा धो के, फ्रेश होके, क्लीन, पूरा क्लीन होके, शैम्पू टैम्पू करके पूरा क्लीन होके, पूरा फ्रेश होके, नहा धो के, अच्छी कपड़ा पहन के आप जाके देवी के पास जाके, अगर घर में पूजा हो रहा है तो घर में ही, या फिर पंडाल में, या किसी के घर में इनविटेशन है, पूजा होता है, वहाँ जाके सिंपल, सरल, ऑनेस्ट मन से आपका जितना समर्थ है, थोड़ा फूल, थोड़ा मिठाई, धूप देना, एक कैंडल जलाना, ठीक है, ऐसे करके सिंपल तरीके से आप पूजा दीजिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पुष्पांजलि जब हम देते हैं ना, हम फूल लेके जाते हैं और मिठाई लेके जाते हैं, ज़्यादा फल भी लेके जाते हैं। एक कैंडल और एक धूप का पैकेट प्लीज़ दीजिएगा, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग देते हैं या नॉर्मल देते हैं, तो धूप और कैंडल मस्ट, एक कैंडल और एक धूप। तो सिंपल तरीके से पूजा दीजिए, देवी के आंखों की तरफ देखिए, टेक द वाइब्स, टेक द वाइब्रेशंस। वहाँ माँ दुर्गा होता है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, कार्तिक जी, गणेश जी, महादेव जी सभी होते हैं, जैसे बंगाल स्टाइल में होता है। माँ वैष्णवी का ही तो, ये तो बंगाल स्टाइल में होता है, तो माँ वैष्णवी का पूजा मतलब माँ वैष्णवी रहती है और माँ नवदुर्गा भी रहती है। कुछ स्टेट में थोड़ा अलग स्टाइल में होता है, सेम पूजा, सेम रिचुअल्स, थोड़ा कुछ अलग स्टाइल में होता है, सभी माँ एक है। तो सिंपल तरीके से पूजा दीजिए और माँ को दिल से, मन से, एट प्रेजेंट आपका जो ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है जो चीज़, वो आप मांगिए माँ से। आपका ड्रीम, आपका एम्बिशन, आप कैसे लाइफ चाहते हैं, आप सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन पहले बोलिए कि प्रेजेंट मोमेंट में आपका क्या चाहिए, फिर आप बाद में सब कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। माँ है, अब संतान है, ऐसे करके, ऐसे फील करके बोलिए, ठीक है। जगत जननी माँ दुर्गा, जगत जननी माँ दुर्गा, आदि पराशक्ति देवी, उनका ही तो तिथि है। माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा सेम है। तो माँ की तरफ देख के, आई टू आई कांटेक्ट करके, संतान और माँ ऐसे भाव पैदा करके आप पूछिए ना, एक बार पूछिए। वी डोंट हैव टू से माँ प्लीज़ गिव गिव गिव, एक बार बोलिए माँ आपका संतान का ये ज़रूरत है अभी, शी इज़ गोइंग टू गिव दैट, शी इज़ गोइंग टू गिव दैट। लेकिन हमेशा हम पहले से ही बोलते हैं कि पूजा पाठ, मांगना, मैनिफेस्टेशंस सिंपल तरीके से कीजिए, वही पावरफुल होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, सिंपल तरीके से पूजा, सिंपल तरीके से मांगना, मंत्रा सिर्फ देवी का नाम, देवता का नाम, जय माँ दुर्गे, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, जय माँ महासरस्वती, जय माँ महालक्ष्मी, जय कार्तिक जी, जय गणेश जी, हर हर महादेव जी, हर हर महादेव, महादेव जी, नाम ही मंत्र है। तो सिंपल तरीके से आप मांगिए कुछ देवी से, आपका नया कुछ शुरू होने वाला है। जो ओवरऑल जो रीडिंग था, मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। नवरात्रि में बहुत पावरफुल तिथि है ऑलरेडी। मनी सपोर्ट, बाय हाउ यू आर गोइंग टू गेट very good money support if you need urgently for any good purpose, any purpose, urgent purpose or good purpose, money support you are going to get। नया लाइफ शुरू करना चाहते हैं, नया कुछ लाइफ में शुरू करना चाहते हैं, यू कैन बी ऑफ एनी एज, आई एम सेइंग दैट, you can be of any age, of any gender, of any place, from any religion even, you can be of any age, do believe me, you can be of any age, do believe me। सो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब यही होता है कि अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करने के बाद योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज एट योर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाग्य का जो व्हील होता है, पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाइए, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब नया कोई स्टार्टअप मतलब इनकम ही नहीं, लाइफ का कुछ स्टार्टअप पॉजिटिव, नया कुछ लाइफ का कुछ पॉजिटिव स्टार्टअप, ठीक है।
पास्ट में जो भी हुआ है, प्लीज़, बहुत स्ट्रांगली वाइब्स मुझे मिला है। लव अफेयर में बिट्रेयल, लव में धोखा, बहुत सारा एस्पेक्ट में धोखा, लव में किसी भी पास्ट का ट्रॉमा, वो पास्ट ट्रॉमा मेमोरीज को हटा दीजिए। माँ को स्ट्रांगली बोलिए कि पास्ट का जो ट्रॉमा मेमोरीज था है वो 1% भी मेरे अंदर ना रहे, क्योंकि पास्ट का जो ट्रॉमास था ना, पास्ट का जो ख़राब मेमोरीज एंड ट्रॉमास था, वो आपको किल कर रहा है हर सेकंड। अगर 1% भी आपके मन में है, ऐसा वाइस मिल रहा है कि वो आपको खा रहा है, पास्ट का ट्रॉमास, विच यू शुड नॉट अलाउ दैट। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस नवरात्रि में माँ को प्रे कीजिए, माँ को बोलिए कि पास्ट का कोई भी नेगेटिव ट्रॉमास एंड मेमोरीज वो आप माँ को बोलिए भुला देने के लिए। माँ को सिर्फ बोलिए भुला देने के लिए सब कुछ। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू से दैट, आस्क दैट। एंड कोई भी नया स्टार्टअप, इनकम में, बिजनेस में, जॉब में, बिजनेस लाइक टीम वर्क, if you ask, if you manifest, very soon, within 1 or 2 months, you are going to get those connections in business like नया startup or something like that। and devil जो कार्ड आया था उसका मतलब है मेनली लव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक लवर का पास्ट ट्रॉमा इन लव, ऐसा पास्ट ट्रॉमा लव मेमोरीज से बाहर आइए। कोई भी खराब एडिक्शन से बाहर आइए। इट मेनली लव पास्ट ट्रॉमास, ऐसे मेमोरीज से बाहर आइए। कोई भी खराब टॉक्सिक, कोई भी खराब एडिक्शन से बाहर आइए। ठीक है, तो माइंड को, सोल को, भावनाओं को, सोच को प्रोटेक्ट कीजिए। बी अंडर डिवाइन गाइडेंस ऑफ माँ दुर्गा एंड माँ वैष्णवी। नवरात्रि बहुत पावरफुल तिथि होता है। शरद नवरात्रि बहुत पावरफुल तिथि है जो आ रहा है नेक्स्ट मंथ। पास्ट का कुछ भी नेगेटिव अगर 1% भी आपके माइंड में वो हॉन्ट करता है, कभी कभी याद आ जाते हैं, वहाँ से बाहर आइए, और सी योर लाइफ इज अगेन गोइंग टू स्टार्ट इन अ न्यू वे। अगर कभी कभी थोड़ा याद आ जाते हैं, माँ का नाम लीजिए मन में, माँ का नाम जपिए, जय माँ दुर्गा, जय माँ वैष्णवी, मन में जपिए, जय माँ भगवती, जय माँ काली के। ठीक है, पास्ट का कोई भी खराब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ट्रॉमा का थॉट्स आप लाइफ में नहीं रख सकते, जो आपको किल कर रहा है हर सेकेंड। फॉरगेट दैट। प्रे टू माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा इस नवरात्रि में, और खुद के लिए सोचिए प्लीज़। डू समथिंग फॉर योर good, how to keep your mind good, how to keep your soul good, how to keep your feelings good. Do not allow other people to destroy your mind and emotions and thoughts. टॉक्सिक पीपल को लाइफ से हटाइए, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आइए। मेमोरी जो मुझे ऐसा वाइस फील हो रहा है ना कि हो सकता है कि जो टॉक्सिक व्यक्ति था, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वो सब कुछ बहुत साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो ऑनेस्ट व्यक्ति जो ये व्लॉग देख रहा है, वो पास्ट का जो मेमोरीज था, टॉक्सिक व्यक्ति रिलेशनशिप, जो टॉक्सिक पर्सन के साथ जो बहुत घटिया जो मेमोरीज था, वो मेमोरीज आपको बहुत परेशान करता है। हो सकता है 6 साल 7 साल हो गया है, आपका कोई कनेक्शंस नहीं है उस टॉक्सिक पर्सन के साथ, कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, उसको पता भी नहीं है वो कहाँ है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, फिर भी वो यादें, गलत व्यक्ति के साथ आप थोड़ा लव में पड़ गए थे या कुछ ह्यूमन इमोशंस कनेक्शंस में आ गए थे एंड अब बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कभी कभी आपको कुछ पास्ट थॉट्स आ जाते हैं, अचानक आ जाते हैं, आप लड़ रहे हैं लेकिन अचानक आ जाते हैं, ऐसा वाइब्स आई एम गेटिंग। डोंट गेट वेरी नवरात्रि इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम। यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट मंथ। सिंपल तरीके से एक दिन पूजा दीजिए, माँ से बहुत मांगिए। ये सबसे ज़रूरत जो बात है कि पास्ट का मेमोरीज और थॉट्स को भुला दीजिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पास्ट का जो मेमोरीज जो थॉट्स है उसको भुला दीजिए आप। माँ से यही पहले आप मांगिए। बिफोर आस्किंग ऑफ एनी अदर थिंग,
पहला जो आप लोगों को मांगना चाहिए इस नवरात्रि में, जो लोग ये रीडिंग देख रहा है, जो लोग ये रीडिंग पूरा देखे हैं, कंफर्मेशन से कि पास्ट का कोई भी ट्रॉमा मेमोरीज, पास्ट का कोई भी एनी काइंड ऑफ पास्ट नेगेटिव ट्रॉमा मेमोरीज, वहाँ से जल्द माँ आप सभी लोगों को, जिन लोगों का कभी कभी वो पास्ट ट्रॉमा ख्याल आ जाते हैं, वहाँ से माँ आप सभी लोगों को बाहर ले आ पाए, सभी लोगों को बाहर ले आ पाए। दिस शुड बी द फर्स्ट प्रेयर टू देवी दुर्गा, टू माँ वैष्णवी इन दिस ऑस्पिशियस नवरात्रि। उसके बाद आपका जो जो चीज़ अलग है आप मांग सकते हो। ओके, आई होप ये रीडिंग कुछ रेजोनेट करेंगे आप लोगों के साथ। जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव। आई एम वेटिंग फॉर द अपकमिंग नवरात्रि। ठीक है, और हम जहाँ रहते हैं बंगाल में, यहाँ तो मतलब पंचमी से पूजा होता है, 5th डे से, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 6 डे होता है, 5 डेज या 6 डे। षष्ठी से पूजा होता है, मतलब बंगाल में ना एग्जैक्ट जहाँ एग्जैक्ट बंगाल में 6th डे से, षष्ठी से 6th 7th 8th 9th 10th 5 डेज पूजा होता है बंगाल में। सेम माँ है, और माँ वैष्णवी का पूजा तो नवरात्रि 9 दिन होता है, हम लोग जानते हैं। तो सेम माँ है, थोड़ा स्टाइल अलग है पूजा का, रिचुअल्स का, सेम ही तो माँ है, माँ तो एक ही होता है। अच्छा, अपकमिंग आप लोग कुछ व्लॉग्स देख पाएंगे। आई होप कि मेरा एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को लेके हम नवंबर मंथ में शायद एक वाटर पार्क है, उसका नाम है एक्वाटिका। तो कोलकाता में वाटर पार्क में हम प्रोबेबली जा सकते हैं नवंबर में, अगर कोलकाता का सिचुएशन ठीक ठाक थोड़ा रहा, अगर लोग जो थोड़ा नॉर्मल हो पाए। डोंट नो इफ इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज वी ऑल नो दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन वेस्ट बंगाल। अगर थोड़ा लोग जाते हैं एक्वाटिका में, या थोड़ा पॉसिबिलिटी है, तो हम नवंबर में एक स्टूडेंट को लेके, बच्चे हैं, 8 में पढ़ता है, आपका वाटर पार्क दिखाएंगे कोलकाता का, एक्वाटिका। और एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन, गुड न्यूज़ है कि दिसंबर 8 को एक्वाटिका में ही, उस वाटर पार्क में ही, ब्रायन एडम्स जो इंग्लिश सिंगर है, ही इज़ कमिंग टू सिंग। और मैं और मेरा एक भैया है, मतलब जो हमें ड्राइंग सिखाते हैं, हम दोनों का वहाँ जाने का प्रोग्राम है। तो लाइव पूरा आपको अपलोड करके वीडियो शेयर करेंगे। ब्रायन एडम्स का लाइव शो होगा, गाना, एक्वाटिका में। तो ये 2 प्रोग्राम मेरा सामने है जो हम व्लॉग में दिखाएंगे। उससे पहले और भी कुछ प्रोग्राम्स है जो हम व्लॉग में शेयर करेंगे, जैसे कि दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा का जो व्लॉग्स होगा तो हम दिखाएंगे यहाँ का पेंडल्स एंड पूजा एंड एवरीथिंग। अच्छा, लक्ष्मी पूजा के बाद हम जहाँ हम रहते हैं इस जगह का ही 2-3 जगह इच्छा है व्लॉग करने के लिए। एक फ्रेंड आएगा मेरा, उसके साथ ही हम व्लॉग करेंगे। एक बार व्लॉग में मैंने मायापुर दिखाया था, इस्कॉन मंदिर, वहाँ हम जाएंगे। लेकिन इस टाइम हम शायद जाएंगे इवनिंग के टाइम, मतलब शाम में। कभी जिंदगी लाइफ में इस्कॉन मंदिर, मेरे घर के पास ही इस्कॉन मंदिर है मायापुर में, जो फेमस इस्कॉन मंदिर है, वर्ल्ड फेमस। तो हमने बहुत बार गए हैं, दिन के टाइम गए, कभी शाम में, इवनिंग में, आरती के टाइम नहीं गए। तो इस टाइम इच्छा है फ्रेंड को लेके आरती के टाइम हम जाएंगे। जब शाम में जब आरती होता है, रात इवनिंग के टाइम हम घूमेंगे मायापुर, ऐसा इच्छा है, आपको व्लॉग में दिखाएंगे ज़रूर। और यहाँ एक जगह है बंगाल में जिसका नाम है शांतिपुर। तो वहाँ बहुत सारा मंदिर है, मंदिर मतलब माँ, बहुत सारा जागृत माँ काली का मंदिर है। और वहाँ का ना माँ काली के टेम्पल और जगह के बारे में बहुत पावरफुल कहानीज़ है। तो वो टेम्पल कवर, शांतिपुर जाने का इच्छा है, टेम्पल कवर करेंगे। वहाँ गोपाल जी का, राधा गोविंद का, महादेव का बहुत पावरफुल टेम्पल्स है, सब कुछ कवर करेंगे शांतिपुर जाके। तो लक्ष्मी पूजा के बाद फ्रेंड जब आएंगे उसके साथ ऐसा कुछ व्लॉग शेयर करेंगे, ठीक है। तो शांतिपुर, नवद्वीप। और एक बात, हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक जगह है, उसका नाम है शिवनिवास। वन ऑफ द बिगेस्ट शिवलिंग ऑफ एशिया
आपको दिखाएंगे। ठीक है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है कि आपको दिखाए हैं या नहीं दिखाए हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे। तो कमिंग दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा के बाद फ्रेंड के साथ व्लॉग्स, फिर 2 बार एक्वाटिका जाना, और दिसंबर 8 में याद रखना ब्रायन एडम्स का शो। ब्रायन एडम्स जो इंग्लिश सिंगर है, वो 8 दिसंबर एक्वाटिका में आ रहा है। तो हम और एक मेरा दादा है जो भैया हम बोलते हैं, ड्राइंग हमें जो सिखाते हैं, हम दोनों जाके लाइव शो देखेंगे। तो व्लॉग करेंगे, शॉर्ट्स देंगे। तो ऐसा कुछ प्लान्स है सामने 2-3 महीने में। सो इच्छा है, देखते हैं कितना हम जा सकते हैं, कर पाते हैं। हर हर महादेव, जय माँ वैष्णो।